Thank you so much, everyone. We will now move on to our next session. Beyond the IPO, Sab Sambhav Kar Dikhaya. This session takes us behind the scenes of Sambhav's journey, from navigating the path to going public to managing operations post IPO. It is my honor to introduce Mr. Vikas Goyal, CEO and Managing Director of Sambhav Steel Tubes Limited. Mr. Vikas Ji is a dynamic leader and the dynamic force of India's future in steel industry. His journey began in 2017, transforming a struggling sponge iron unit into a fully integrated steel manufacturing facility. In recognition of his exceptional leadership and contributions to the industry, Mr. Vikas was honored with the Young Leader 40 Under 40 award by the Brand Story in 2024. Mr. Vikas could not be here, so he will join us virtually. To guide us through this discussion, may I please invite Mr. Ish Mohit, co-founder of School of Intrinsic Compounding SOIC, inspiring thousands starting their investment and finance journey from their home through internet. With over a decade of experience in equity markets, he has developed a distinctive investment philosophy centered around intrinsic compounding. Through SOIC, Ishmohit is not just creating investors, he's creating a community of informed, confident wealth builders. We welcome you, sir. Next on stage, I would like to invite Mr. Saket Agarwal, a seasoned professional with over 2 decades of experience in the steel and pipes industry. A commerce graduate from the University of Delhi, has held pivotal roles across several prominent companies. Notably, he has also earlier served as the managing director and CEO of Starlog Enterprises. Next on stage, I would like to call Mr. Piyush Mehta, Chief Investment Officer and Partner at Capri's Investment Managers, a SEBI registered research focused investment firm. With over 16 years of experience in the Indian equity markets, he has honed his expertise at renowned institutions. He provides strategic advisory services to institutional investors, hedge funds, and ultra high net worth individuals across the globe. We welcome you all, sir. So yeah, good afternoon, विकास जी. So जैसे या so last year जैसे जब आप आए थे यहाँ धंधो वैली में, तो जब संभव was about to get listed और अब जब एक 1 year forward संभव has been listed on the stock market and the response has been positive. तो ये जो एक experience और journey रहा है आपका since the time of last year to now when you have got listed on the stock market, so कैसा experience रहा है आपका और उस तरफ से start करते हैं. फेबुलस जर्नी रही. जो लास्ट ईयर आप लोगों की हेल्प से हमने एक प्री आईपीओ राउंड किया, 2 साल बाद आईपीओ किया, डीआरएसपी फाइलिंग किया. हमारी काम करने की ताकत बढ़ गई, पूरी टीम की ताकत बढ़ गई और एक हौसला बढ़ गया कि हम कुछ बड़ा आगे कर सकते हैं. जैसे कि हमने 1.2 मिलियन टन का टेस्ला का प्लान प्रोजेक्ट किया. तो जब हमारे आईपीओ प्रोसीड से हमने पुराना सारा डेट प्रीपे कर दिया, तो एक हिम्मत आ गई कि अब बहुत बड़ा काम भी किया जा सकता है. जो और नया एक्सप्लोर कर रहे हैं एलॉय स्टील साइड में कि और नया क्या कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है. अब 15 डेज हमने, मेरे जो हमारे नेफ्यू हैं उन्होंने 15 डेज हमारी जो टेक्निकल टीम के साथ में चाइना में बिताया. तो उसमें और हमने एक्सप्लोर किया कि हम क्या, जो एक नया प्रोडक्ट शायद आपको देखने मिलेगा जल्दी. एलॉय स्टील में ही ज़्यादा हमारा फोकस है अभी, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में हमको लगता है कि हमें मार्जिन भी अच्छे मिल रहे हैं और मार्केट में डिमांड बहुत बहुत अच्छी है और प्लेयर्स भी बहुत कम है उसमें. तो पाइप एंड ट्यूब तो हमारा फोकस है ही, साथ साथ में एलॉय स्टील में, स्टेनलेस स्टील की तरफ में और हमारा भी फोकस बढ़ा है. और जर्नी की बात करें तो जर्नी बहुत फेबुलस रही. आईपीओ लिस्टिंग हुई, एक कहीं ना कहीं मार्केट में, या अब तो एक नॉन ब्रांड हो गया संभव, हर आदमी संभव जानने लगा. मार्केट में भी एक कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट बढ़ी. और दूसरा बोलेंगे तो एक मतलब ऐसा लगता है कि हर आदमी को काम करना था.
जो पहले कहीं ना कहीं एक बड़ी कंपनी के साथ में डील क्रैक करने में या मिलने में थोड़ा सा एक वो रहती थी, लेकिन अब वो बहुत आसान हो गया। तो वो बहुत बड़ा फायदा मिला है कि किसी के साथ बात करने में, जैसे DSW से या किसी से जब डील करते हैं तो एक रिकग्निशन रिकग्नाइज नेम है हमारा, तो वो बहुत बहुत फायदा मिला उससे। सर कैसे हैं आप? इश्माइल दिस साइड। या हाय स्माइल, बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक लास्ट मंथ आई विजिटेड योर प्लांट इन बेसिकली रायपुर। तो जी। जस्ट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी हैड, एंड आई थिंक आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं सर, कि आई थिंक जब आपका से 2 साल पहले हम प्लांट देखने आए थे, जो प्लांट बनता, तो जी। तब तो थोड़ा सा प्लांट में चलने से भी डर लग रहा था एक्चुअली। अभी जब देखा तो आपने पूरा मॉडर्नाइज कर दिया उसको, एंड प्लांट 2 जो आपका है वो प्लांट 1 से भी बहुत ही ज्यादा आपने एकदम क्लीन प्लांट एंड एकदम वर्ल्ड क्लास प्लांट आपने बनाया। सो हाउ हैज द आइडिया ऑफ गेटिंग इन्वेस्टर्स इन और फंड्स इन एट द राइट टाइम हेल्प्ड यू इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजिंग योर प्लांट और इंक्रीजिंग योर कैपेबिलिटी? देखिए, पहले हम जो काम कर रहे थे, समझिए एक जो देसी तरीके से प्लांट लगाना, लेकिन अभी थोड़ा सा और कॉन्शियस होके काम को अच्छे से मॉडर्न तरीके से, कि सिर्फ मतलब एक चीज नहीं है कि हमको सिर्फ प्रोडक्शन करना है, हमको एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना है, एनवायरनमेंट को भी देखना है, क्योंकि अब जो पब्लिक हमारे साथ जुड़ी है, जो इन्वेस्टर्स का ग्रुप हमारे साथ जुड़ा है, वो सब चीजों को देखता है, सिर्फ नंबर्स को नहीं देखता या सिर्फ ग्रोथ को नहीं देखता, वो सारे एस्पेक्ट्स को देखता है कि हमारी वर्किंग स्टाइल क्या है, हमारा मैनेजमेंट कैसा है। तो हम टॉप मैनेजमेंट में भी लोगों को हमने लाया है, बड़े बड़े पदों पे, और काम करने के तरीके में भी बहुत चेंज आया है पिछले 2 साल में, वर्किंग स्टाइल में, स्टाफ के उसमें या लेबर्स के रख रखाव में। तो वो चीजें वो आपको थोड़ी आपको अच्छी लगी है, देखने को मिली। तो हमारा भी कहीं ना कहीं वो एक तो नया एस्पेक्ट बना कि नहीं सिर्फ नंबर्स या ग्रोथ ही एक चीज नहीं है, सबको साथ में लेके, हर चीज को साथ में लेके चलना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा। हमें जैसे देखता था कि भाई निकॉन की फैक्ट्री है या DSL का प्लान है, बहुत साफ सुथरा प्लान होता था, मतलब इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं यार, क्योंकि प्रोडक्शन तो पैसे कम खर्च करके भी किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नई चीजें जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करना है, आपको एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना है, जिससे सभी लोग काम करने का एनवायरनमेंट अच्छा हो, जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनको एक अच्छा फीलिंग आए, और सेफली एनवायरनमेंट बने। तो वो चीज हमने बहुत डेवलप की है प्लान में, और आगे भी आपको और बहुत सुंदर देखने मिलेगा जब आप आएंगे। जय श्री राम विकास जी। पीयूष। जय श्री राम भाई। तो सर ये तो IPO की बात की जर्नी थी, सो आई थिंक स्टोरी शुरू होती है दिसंबर 2023 से, जब पहली बार जैसे वो प्री IPO राउंड हुआ, और मतलब वो कहते हैं ना कि जब एक योद्धा युद्ध लड़ने जाता है, वो ये सोच के युद्ध नहीं लड़ता कि वो जीतेगा या नहीं। और महाभारत में हमने देखा है कि जैसे अर्जुन है, वो बहुत महान योद्धा था, पर जब वो फील्ड पे उतरता था तब उसे भी उतनी ही डिलेमा होता था या उतनी ही संकोच होती थी। बट एक सारथी कृष्णा के रूप में जब उसको मिला तो पूरी जर्नी चेंज हुई। तो जो जर्नी थी, जो प्री IPO इन्वेस्टर से लेके हमारी इवेंचुअली एक लिस्टिंग जर्नी जो होती है, जब प्री IPO इन्वेस्टर्स आते हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं और फिर लार्जर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तो जो 2023 से लेके लिस्टिंग की जो जर्नी थी, उसमें जो ये क्या कहते हैं, जो ग्रोथ कैपिटल और जो एक गाइडेंस और क्या बोलते हैं डायरेक्शन प्री IPO इन्वेस्टर्स से मिला, उसका भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। बहुत एक्सपीरियंस मिला भाई, बहुत हिम्मत मिली, मैं बोल सकता हूँ कि जब भी ऐसा लगा कि यार ये काम में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आज 700-800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगभग 1000 करोड़ के आसपास पावर, अगर मैं देखूंगी हमारी कॉस्टिंग कम करने के साथ में, तो ये हिम्मत कहीं ना कहीं साकेत जी, अर्जुन जी से और आपसे मिलके आई, और सभी लोगों से जिससे हम इंट्रैक्शन हमारा लगातार रहा कि किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, आप सिर्फ ग्रोथ प्लान करो, बाकी सब हम करें। मतलब साकेत जी ने हमेशा हाथ पकड़ के ये बात बोली कि आप अपनी कंपनी की ग्रोथ प्लान, कभी हम आपको पीछे नहीं हटने देंगे, कभी आपको गिरने नहीं देंगे। मतलब ये हिम्मत जो है, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत जो एक मिली। हम काम कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज अटकती है कि भाई हर चीजों के लिए आपको मनी की जरूरत है। तो जब मनी बैंक हमारे साथ था, तो हमको एक वो हिम्मत बिल्कुल साथ में मिली
कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको जो जो करना चाहते हैं आप। तो हमने एक नई उड़ान भरी, आप बोल सकते हैं, और आगे आपको और अच्छी उड़ानें हमारे साथ में देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा साथ था। हिम्मत जो है वो बहुत बड़ी हिम्मत मिली है आप सब लोगों से। इसके पहले एक सेशन था और वहाँ पे बात हुई थी कि बड़े सपनों की, जब सपना देखो तो बड़ा देखो। और जब आप बड़ा सपना देखते हैं तो उसे अचीव करने के लिए सफरिंग भी उतनी बड़ी होती है। तो जब देखना ही है तो बहुत बड़ा सपना देखें। तो आपके हिसाब से जो ये जर्नी का द नेक्स्ट 3 to 5 years, हाउ हैज द IPO कैपिटल, उसके पहले का ग्रोथ कैपिटल, वो जो एम्बिशन है आपका से आपसे 2 साल पहले जो था और आज जो है, वो दोनों बताइए आप, एंड हाउ दैट चेंज बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ कैपिटल। नहीं, अगर पहले मैं बात करूं कि 2 साल पहले अगर ये हमने नहीं किया होता तो हम इसी प्लांट पे धीरे धीरे अपग्रेड करके इसको चला रहे होते। लेकिन ये आप लोगों के साथ के कारण ही हो पाया कि हम IPO कर पाए, हमारा डेट रीपेमेंट कर पाए, और नई जो उड़ान अभी आगे बढ़ने जा रहे हैं स्टेनलेस स्टील की, या एक जो हम मिलियन टन की बात कर रहे हैं, तो ये सब आप लोगों की इन्वेस्टर्स के साथ के कारण ही हो पाया। नहीं तो एक जो देसी अंदाज में कि हम ही मालिक और हम हमारी फैक्ट्री में चला रहे हैं जैसे, तो वो अब ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं उस प्लांट में, मालिक हम सब हैं। तो वो फीलिंग जो है वो इसके साथ में ही आई कि आई एम द को पार्टनर। तो वो एक जो फीलिंग है ना, वो बहुत आपको काम करने के लिए वो भी देती है कि इच्छा भी पैदा करती है कि नहीं, हम लोग फ्री हैं, हम मतलब एक स्ट्रेस नहीं है लाइफ में कि कहीं ना मनी की स्ट्रेस नहीं है, या आप बोल सकते हो कि आप खुल के सपने देख सकते हो, खुल के अपने काम को कर सकते हो। तो ये स्ट्रेंथ मिली है। और हमने हमारे जैसे लोगों को, काफी लोगों को अभी अपॉइंट किया है, डायरेक्टर लेवल पे भी हमने बड़ा अपॉइंटमेंट किया। ये हिम्मत उसी के साथ में आती है कि नहीं, हम सबको मिलके काम को आगे बढ़ाओ। तो वो था कि पहले लोग हमारे लिए काम कर रहे थे, हम सब मिलके आओ, हम सब के लिए। एक होता है कि जो कैपिटल हमें मिला, बट दूसरे जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जब हम लिस्ट होते हैं, विच इज़ हाउ यू ऑपरेट, हाउ यू गवर्न योर सेल्फ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मैटर होता है। तो ये सब चीज़ें किस तरह बदली हैं एज अ कंपनी इंटरनली, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू चेंज दीज थिंग्स। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो 100% बदला है सर, बदला बोल सकते हैं। तो उस राह में आगे बढ़े जो हम सोचते थे कि हमें ऐसा करना है, तो उस राह में आगे बढ़े हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर पे हम डेवलप करें। और जो हायर लेवल पे हम पहले सोचते हुए नहीं थे कि डायरेक्टर लेवल पे लोगों को लाया जा सकता है, तो उस लेवल पे भी अपॉइंटमेंट्स किए हमने, सारी डिवीजन्स पे VPs हमने अपॉइंटमेंट किए। कहीं ना कहीं पेइंग कैपेसिटी हमने हमारी बढ़ाई, इनकम भी बढ़ी, उसके साथ साथ रेवेन्यू भी ग्रोथ किया। तो वो सब मिलजुल के ही हो पाया कि इन सब जो हमने एक्टिविटीज की, जो भी हमने आपका साथ मिला, साकेत जी का, अरविंद जी का साथ मिला, तो इन सब चीजों से होके ही ये चीजें आगे बढ़ गई। तो विकास जी, आपने अभी कहा जो कि आपने बड़ी खुशी के साथ अपना मालिकाना हक जो है कंपनी के ऊपर वो शेयर किया है। तो जैसा कि मैं आपकी पूरी फैमिली को जानता हूँ, तो एक टिपिकल मारवाड़ी जॉइंट फैमिली है और काफ़ी सारे लोग उस फैमिली में हैं। आपके फादर, मदर, फादर, फिर आप 4 भाई हो। तो ये एक जो डिसीजन था फैमिली में कि अब आज से हम अकेले मालिक नहीं है और अब इस कंपनी के मालिकाना हक को हम बहुत सारे लोगों के साथ, पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग किस तरह से हुई, अगर जिसमें जितनी बता सकते हो आप इस बारे में बात, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत सारी फैमिलीज के साथ है कि भाई हम अपना मालिकाना हक को कैसे शेयर करें। और जस्ट टू ऐड, एक तो मालिकाना हक और दूसरा यू आर ओपन टू पब्लिक फॉर मतलब दे विल क्रिटिसाइज यू, यू आर ओपन टू ऑल योर शेयर होल्डर्स। तो मतलब दैट इज ऑल्सो नॉट ईजी। तो ये भी बताइए। ये समझिए आप, जो हम बोलते हैं कि हमारे पापा ने हमें 4 चीजें सिखाई हैं कि कड़ी मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, दूरदृष्टि रख के काम करो। तो लॉन्ग विजन के कारण ही, और हमारा सपना था पूरे परिवार का कि एक हम बड़ा काम। तो जो आप देखेंगे कि हमने जो नई टेक्नोलॉजी जो लाई, इसमें नैरो विड्थ HR कॉइल का हमने प्लांट लगाया, पाइप मैन्युफैक्चरिंग की एज पार विद द जो हाई स्टैंडर्ड्स पाइप एंड ट्यूब्स अवेलेबल हैं।
तो ये सारी हमारा एक सपना था कि हम इतना बड़ा काम करें और देश में कुछ एक नया हमारा नाम करें या एक बड़ा काम करें। तो क्योंकि हम छोटे छोटे प्लांट तो काफी चला ही रहे थे, जिसमें हमें अर्निंग्स भी अच्छी थी, हमारे घर में कोई हमको ऐसी कमी नहीं थी किसी तरीके की। तो हमको एक था कि हमको बड़ा काम करना है, तो उस सपने को ही हमने सबके साथ जिया। तो वो एक समझो एक प्लान ही था कि आगे बढ़ के इस काम को आगे बढ़ाना है, और अब आगे बढ़ रहे हैं और काम बड़ा कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है उस बात कि कोई ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ अब एक जो सोच डेवलप हुई है कि हमको सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, हम सबको आगे बढ़ना है। हमारे साथ आप भी कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट आप बनते हैं, हम आपका सपोर्ट बनते हैं, तो ये चीजें एक साथ आगे बढ़ती हैं। तो वो चीजें की फीलिंग कहीं ना कहीं रही थी पहले, और ये स्ट्रेटेजी का प्लान आप बोल सकते हैं कि हमारा एक था कि कुछ बड़ा करेंगे, तो वो उस तरीके से हमने आगे बढ़ाया और बहुत अच्छा साथ मिला एक्चुअली आप सब लोगों का। क्योंकि मतलब जो एक भरोसा और जो एक तसल्ली की नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात हमें लगती है हमेशा। सर, तो लिस्टिंग के बाद का जो हमारा भी एक्सपीरियंस है कि अब तो क्वार्टरली कॉन कॉल्स भी करनी पड़ती है, मतलब 3 महीने में भी लोग पूछते हैं। एंड एक जो हमारा इक्विटी कैपिटल का जर्नी रहा कि पहले हम सिर्फ प्लांट 1 में सीमित थे, अब प्लांट 2 भी आ गया। आई थिंक भगवान करे Q4 तक तो शायद से प्लांट 3 भी आ जाएगा FY27 में। तो कैसे इक्विटी कैपिटल हैज प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेशनल रोल, बिकॉज कितना डेट ले लेंगे एक एंटरप्रेन्योर्स के साथ, क्या होता है स्केलेबिलिटी में कि काफ़ी लोग डेट लेते रहते हैं एंड कभी कभी खराब साइकिल आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट इक्विटी यूज करना टू हैव अ विजन ऑफ 3-4 years, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव लाइक दैट थॉट प्रोसेस एज एन एंटरप्रेन्योर? देखिए, हमने एक जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव किया, बस जो हमने अभी लोन लिया था या जो एक्टिव प्रोसीड से रिपेमेंट किया, ये हमारे लिए बड़ा लोन था। 400 करोड़ रुपए आप लोगों को बड़ा नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा वो एक सफर था, कभी हमने इतना बड़ा लोन लिया नहीं था। तो अब जो हमारा सेकंड फेज है हमारी इस समझो संभव की जर्नी का, वो सेकंड फेज है कि हमें अभी लोन की जरूरत पड़ेगी, जो हम केसा वाला प्लान कर, लेकिन इसके बाद जब इसके अगले फेजेस हम करेंगे तो इसमें शायद हमें जो है 500 से 600 करोड़ रुपए हमें लोन अभी और लेना होगा। लेकिन जब हम इसके बाद जब हमारा EBITDA 500 to 600 के आसपास जब हम जो हमने टारगेट किया है हम करेंगे, तो फिर फर्दर हमें कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि हमें लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कुछ भी प्लान करेंगे 1000-1200 करोड़ का, तो वो 2 साल में हमारे पास में बैकअप है। तो ये सेकंड एक बस फेज हमें क्रॉस करना है, जहाँ हमारा EBITDA तो हमने इस जो 26 से हम डबल करने जा रहे हैं 28 किया, तो वो वहां पे उसके बाद हमें के लिए इस नैया से हम पार हो जाएंगे कि हमें बैंक की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारे इंटरनल एक्टिविटी से ही हम आगे। विकास जी, एक और बहुत ही मतलब जैसे जो आपने कॉन्कोर्स के लिए पूछा, तो देखिए प्रश्न पूछने से मुझे लगता है कि चीजें और अच्छी होती, सब लोग मिलते हैं नई नई तरीके की, जो कई बार हम जिस एक्सपेक्ट को देख नहीं पाते। भाई हमारा एक गोल होता है, हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है। पिछले एक तो मैं बोलूँ कि हमने जो व्यापारिक घर में जन्म लिया, पिछले 25 सालों से जब हम घर में रात को बैठ के बात भी करते हैं, तो यही बात करते हैं कि क्या बेचा, क्या खरीदा, क्या मुनाफा किया। तो वो हमारा जो एक नया एक्सपेक्ट खुले कि भाई इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। जैसे अब रोहित टक्कर जी जैसे मिले, जो हमारे एंकर इन्वेस्टर भी हैं, उन्होंने कहा जल्दी क्यों नहीं करते सब, तो जो आप फेज 1, 2, 3 कर रहे हो, इसको सारे को एक साथ करके काम को आगे बढ़ाओ। डिमांड तो है मार्केट में, आपके पास में डिमांड है, आपके पास कैपेबिलिटी है काम करने। तो ये जो जोश और ये जो नया एक सोचने का तरीका मिलता है, तो ये मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सोचने के मजबूर करता है और बहुत कुछ सिखाता भी है कि इस काम को ऐसे भी और चीजों को ऐसे भी सोचा जाता है। जस्ट एज अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, आपको मतलब क्योंकि एनालिस्ट लोग की सब देखते होंगे तो कंपेटिटर्स के साथ बेंचमार्क भी करते होंगे, तो आपको भी अंदर से वो भी आता रहेगा कि कंपटीशन क्या कर रहा है, इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, इंडस्ट्री का न्यू ट्रेंड क्या हो रहा है, कि हमें न्यू से न्यू ट्रेंड या टेक्नोलॉजी पकड़नी है। तो हाउ इम्पोर्टेंट बेसिकली वो जो रोल होता है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी कि आप बेंचमार्क करके चले पीएल्स के साथ? देखिए, हमने तो नए बेंचमार्क बनाए हैं अभी तक, और आगे भी हम हमारी तरीके की अलग कंपनी होंगी जो अपने बेंचमार्क बनाएगी, और लोग देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, जो स्टेट प्लेयर्स हमारे बोल सकते हो या जिनके हम फॉलोवर्स हैं बोल सकते हो,
हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और इस कंपैरिजन में भी सीखते हैं कि वो क्या नया कर रहे हैं, तो वो फॉलो भी हम करते हैं। और लेकिन हमने हमारी एक अलॉय स्पीकिंग नई जो एक लाइन अभी और हम डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसमें हम आपको बहुत कुछ आगे करेंगे। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए, जैसे कि आईपीओ की आपकी अभी जर्नी हुई है और बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में इस समय आईपीओ की जर्नी के से गुजरना चाहती हैं या सोच रही हैं, तो ये तो बहुत हो गया कि भाई आपको क्या क्या उससे फायदा हुआ, ये सब क्वेश्चन तो हो चुके। लेकिन अगर उन लोगों के लिए आपके पास कोई मैसेज हो कि क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है? What not to do? नॉट टू डू, देखिए मुझे कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत आई नहीं, तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि नॉट टू डू क्या होना चाहिए, क्योंकि हम 7 साल पुरानी कंपनी थे। कोई 20 साल पुरानी कंपनी हो तो उनके पास डेटा बहुत लंबा होता है, हमारे पास कोई कोई केस नहीं था, कोई हमारे ऊपर कोई एलिगेंस नहीं था, किसी तरीके का एक भी कोई केस नहीं था हमारा, तो हमारे लिए बहुत रहा आसान रही। एक आप जो डीआरएसपी पे किसी भी चीज पे कहीं भी कोई भी हमारी कंपनी के बारे में जो भी एक जो आप ड्यू डिलिजेंस किया गया, तो वो हमारे लिए बहुत स्मूथ रहा। तो नॉट टू डू तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन बट टू डू बहुत सारे हैं कि जो बैंकर्स हैं वो अच्छे जो हैं सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो हमने नहीं किया वो नहीं करना चाहिए। कोई अंडर राइटिंग या कोई लाइक दैट, कोई हमको शुरू से साकेत जी सर ने सिखाया कि हमको कोई काम हम नहीं करना, हमको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारे उस पे लॉन्ग टर्म पे कोई इम्पैक्ट आए। तो हमने बिल्कुल ईमानदारी से अपने बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से हमारी कॉस्टिंग की अगर आप बोलेंगे टोटल आईपीओ की 5% है हमारी, तो जो हमारे बैंकर्स ने फर्स्ट डे हमको 5.5-6% बोला था कि भाई हम कमीशन लेंगे 3.5%, बाकी खर्चा आता है जो लीगल्स का और चीजों का, भाई आपका लीगल वाले ले लेते, तो वो हमको हमारा मिनिमम खर्चा आया। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से कम खर्चे में ही आईपीओ करना चाहिए। कोई बहुत खर्च करके बहुत उस टाइम इन्फ्लुएंस करके लोगों को ज्यादा रेट में कर लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक प्राइस में, जो प्राइस सबको सूट करे उस प्राइस में आईपीओ लाना चाहिए। जब सबको ग्रोथ मिलती है तो सब आपके साथ खड़े होते हैं। मैं देखता हूँ कि आज जितने हमारे प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं या जो जिन्होंने आईपीओ के बाद भी जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं या जो आईपीओ चलते ही जिन्होंने भी शेयर लिए, तो सबको कहीं ना कहीं एक वो मिला कि भाई हाँ भाई प्राइस हाइक हुए, उन्होंने ठीक प्राइस में आईपीओ किया, तो वो हमने सबकी बात मानी तो हमें फायदा हुआ। तो वो हमें लगता है कि सभी लोगों को इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना करते हुए और ठीक प्राइस में आईपीओ। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी जो कंपनी पैसा रेस कर रही है प्री आईपीओ के लिए भी, कि कलर ऑफ मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो क्वालिटी ऑफ मनी है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो आपके साथ किस तरह मतलब एज ए कंपनी ग्रो करें, वो बहुत। और विकास जी, अभी यहाँ पे 400-500 लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, शायद ऑनलाइन भी सुन रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सबका आपके लिए कि Q2 EPS कितना है? Q2 के नंबर्स तो आपको नहीं दे सकता मैं। क्वांटम में हमने ग्रोथ की है, 92,000 हमने फर्स्ट क्वार्टर में किया था, 98,000 हमने सेकंड क्वार्टर में किया है, लगभग हमने 10% के आसपास ग्रोथ की है, 9%। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो स्टेनलेस स्टील में और प्री गैल्वेनाइज्ड पाइप जो हमारा नया एड-ऑन प्रोडक्ट है, तो इसमें हम क्वालिटी जो हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको बेटर अचीव कर रहे हैं। तो इस लास्ट क्वार्टर में हमने 60% की थी, इस क्वार्टर में हमने 75% की है। तो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ग्रोथ करेंगे तो हो सकता है 100% हम ले जाएंगे क्वार्टर तक। और कुछ क्वांटिटी एडिशन और हम करने जा रहे हैं स्टेनलेस स्टील में, जो भाई साहब प्लांट विजिट पे देखा भी होगा, हमारे पास जगह भी काफी उसमें है, तो वहाँ हम और क्वांटिटी एड ऑन कर रहे हैं हमारे स्टेनलेस स्टील पे। तो नंबर्स पे भी और क्वांटम में भी आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर हो सकता है थोड़ा सा एक जो मार्जिन के रूप में थोड़ा सा एक श्रिंक दिखेगा, क्योंकि बारिश के सीजन में थोड़ा सा एक प्रेशर होता है। तो हमने क्वांटिटी अचीव की है कि हम हमारी पूरी क्वांटिटी बेच पाए। थोड़े मार्जिन हो सकता है श्रिंक हुए हो फर्स्ट क्वार्टर से, लेकिन थर्ड फोर्थ क्वार्टर में ठीक है। थैंक यू सो मच विकास जी। आई थिंक जितने सरल आप हैं और उम्मीद करते हैं उतनी सरलता से आप आगे भी कंपनी चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एज इन्वेस्टर्स एज पार्ट ऑफ योर जर्नी। Thank you to Saket ji and the entire team at Niveshaay as well. थैंक यू Niveshaay टीम, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत बहुत बधाइयाँ इस पूरे लैंडो वैली के लिए और मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए, इनवाइट करने के लिए। Thank you to our esteemed panelists for your inspiring words. May I please call on stage Mr. Gaurav Sood and Mr. Viraj Mehta to present mementos to our panelists.